Students, we are going to learn the next topic in our subject C programming, and the topic name is called as functions. Okay, I have already started with this topic in the classroom. So let us once again see what do you mean by functions, and then we will proceed with the programming example of this particular topic, that is functions. Okay, before understanding this particular topic, let me explain you in simple, in our own words, what do you mean by the function actually. Okay, so let's take an example of a car. Okay, suppose I want to make a car. So, and I want a particular person to make that car. So for making that car, that person, what it would require from my side, it will require all the raw materials and it will require all the spare parts. Okay. So let's say I want this particular car. Okay. For this, I would be providing all the spare parts or raw materials. I will specify that in the bracket: spare parts or raw materials. Okay. So I want this particular car, so I will provide the spare parts or raw materials to that particular person who will, make this particular car, or I can say that particular person as mechanic. Okay. Next, after that, after getting the spare parts or raw materials, what that particular person will do, it will assemble all the spare parts, it will make all the parts, it will paint and it will do all those required things to be done, and then finally it will return that particular thing. It will return what? It will return car. It will return car. So that particular car, it would return, which is that car type, I will write down over here, car type. Okay. So this is all about, the functions, how we can relate the definition of functions with this particular thing. Let's say, जैसे कि मुझे यहाँ पर कार चाहिए था, सो कार के लिए मैंने क्या किया, इन द ब्रैकेट आई हैव स्पेसिफाइड द स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स, एंड यूजिंग दिस स्पेयर पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स, दैट मैकेनिक हैज डन द असेंबलिंग ऑफ दिस ऑल दोस पार्ट्स, and it has made that particular car, and it has returned that car. So whatever the car type, I will require over here car type, and that car would be returned to the owner. Okay. In the similar way, in our C language, suppose we want to perform a particular task. So that task we would give to a particular function. So we'll write down that function name over here. Okay, and whatever it will require to do that task, all the raw materials or all the arguments or parameters we will specify over here. Then using this, that task would be done over here, and final answer would be returned by this particular function. And what is that type of the return, we will specify over here, return type. Okay, let's say one example. Let's say the task is adding two number. The task is adding two integer numbers, adding two integer numbers. Let's say example. So for this, what we are going to do, let's say for adding two integer numbers, we want a function name. Let's say I'm naming that function name as add, add. Okay. So for adding this two numbers, what things are required? Two numbers. So that two numbers, that raw materials will specify in this particular round brackets. The two numbers, let's say a and b, and we have to specify the data type also. So int a comma int b. So this is the two things for adding we will require, and then after that, in the bracket, what we are going to do, we are going to add this particular number. So this is a plus b. We will do a plus b, and कहीं ना कहीं मुझे इसका आंसर स्टोर करना पड़ेगा. लेट से मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ सी में. ठीक है, तो ये सी का भी डेटा टाइप मुझे स्पेसिफाई करना होगा, तो यहाँ पर स्पेसिफाई करो इंट सी. ओके. सो आफ्टर दैट, ये जो सी आंसर आया ए प्लस बी को ऐड करके, अब इसको मुझे रिटर्न करना है, तो उसके लिए लिखना है RETURN रिटर्न सी. So that C, the answer it would return by this particular function. अब ये जो रिटर्न कर रही है C का डेटा टाइप क्या है,
व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इंट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऐड फंक्शन एक इंटीजर डेटा, तो यहाँ पर मुझे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर इंट। ओके, अगर ये फ्लोट होता तो फ्लोट लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, लाइक दैट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता और मल्टीप्लीकेशन के लिए एक फंक्शन कैसे मैं बनाता, तो उसके लिए मैं लिखता, नाम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नाम, लेट से मल्टी नाम होता उसका, ठीक है। ब्रैकेट में मैं स्पेसिफाई करता जो मल्टीप्लाई करना है वो पर्टिकुलर दो नंबर्स, लेट से पी और क्यू। सो इंट पी कॉमा इंट क्यू, ये दो वेरिएबल्स के अंदर वो जो पर्टिकुलर नंबर से इंटीजर नंबर पी और क्यू, ये पी और क्यू को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो इन द राउंड ब्रैकेट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पी और क्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी इंटू क्यू, आंसर कहीं ना किसी ने स्टोर करना है मुझे, लेट से मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ एम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सो ये एम नाम का वेरिएबल पी इंटू क्यू, तो आंसर आ रहा है एम में, तो उसका भी डेटा टाइप मुझे स्पेसिफाई करना, तो आप स्पेसिफाई कर दो इंट एम, ठीक है। अभी एम में आंसर आ गया, मल्टी नाम का फंक्शन, ये एम को रिटर्न करना, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न एम, ठीक है। अभी जो एम रिटर्न कर रहा है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, दो अगर इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आंसर भी इंटीजर में आ रहा है, तो यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप आपको स्पेसिफाई करना है। सो दिस इज द पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर देखो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स सारे फंक्शंस में वो क्या, वो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर ये जो हमने मल्टी लिखे हैं, मल्टी, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन नेम, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन नेम, ओके। अब जो राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो राउंड कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो इंट है हमने यहाँ पर जो लिखे हैं इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न टाइप, दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न टाइप। हर एक का मतलब देखो, फंक्शन नेम फंक्शन का नाम है, ये जो रॉ मटेरियल हम लोग फंक्शन को जो टास्क परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ फंक्शन, और जो पर्टिकुलर फंक्शन ये रिटर्न करेगा, जो आंसर रिटर्न करेगा उसका रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंट, फ्लोट भी आ सकता है, इंट भी आ सकता है, कैर भी आ सकता है। आगे हम लोग देखेंगे ये रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉइड, VOID, वॉइड, ठीक है। वो गया, अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इतना आप लोग को यहाँ पर भी, फॉर द टाइमिंग जस्ट आप लोग इतना समझ लो कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है फंक्शन नेम यानी क्या, रिटर्न टाइप यानी क्या, आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स यानी क्या, बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन इसको हम लोग प्रोग्राम में ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, लेट्स सी नाउ। But before that, let me explain you the particular three types of function. ठीक है, there are three ways to execute this function: type 1, type 2 and type 3. Let's see first type 1. type 1 में क्या होता है, देखो मेन फंक्शन होगा और माई फंक्शन होगा, माई फंक्शन है जो अभी हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। देन सिमिलरली देयर वुड बी टाइप 2, again main and my function, this is main and this is my function, okay। again type 3, again यहाँ पर भी क्या होगा, this is the main function and again there would be a my function। अब देखो टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 में हम लोग यहाँ पर इनपुट लेंगे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे माय फंक्शन में एंड देन आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे मेन फंक्शन में। टाइप 2 में क्या करेंगे हम लोग, इनपुट यहां से लेंगे, ठीक है, आफ्टर दैट कैलकुलेशन हम लोग माय फंक्शन में करेंगे और आउटपुट भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे माय फंक्शन, ओके। नेक्स्ट टाइप 3 में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल करेंगे, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर
मेन में, और माय फंक्शन में आकर के जो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर इनपुट भी यहाँ पर लेंगे, देन कैलकुलेशन भी यहाँ पर करेंगे और आउटपुट भी यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली वी विल प्रेफर दिस टाइप 1, वी आर गोइंग टू वी विल गो विद दिस टाइप 1, देन आफ्टर दैट कभी कभी हम लोग टाइप 2 भी इस्तेमाल करते हैं, बट टाइप 3 इज वेरी वेरी रेयरली यूज्ड, वेरी वेरी रेयरली यूज्ड। मोस्टली वी विल प्रेफर टाइप 1, then sometimes we will go for type 2 also, and very rarely we will execute this particular type 3, ठीक है। So these are the three types how we are going to add the functions in our program. Now next thing is that let me tell you one particular programming example of this. The programming example can be, let's say I want multiplication of three numbers, so the question is, write a program to multiply three numbers and display the answer, so see, first of all I'll write down the program without function, then after adding function what would be the difference, we will see that, okay। So let just the question is, write a program to multiply three numbers and display the answer। अगर ये क्वेश्चन है तो मुझे बताओ इसका आंसर कैसा रहेगा। वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, then after that void main, then यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में भी क्या क्या आएगा मुझे बताओ, थ्री नंबर्स है तो तीन वेरिएबल्स लगेंगे, लेट से ए बी सी, ये तीन वेरिएबल्स, और इसको मैं डिक्लेयर करूंगा इंटीजर, और आंसर तीनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आंसर निकलेगा। तो आंसर के लिए लेट से मैं ले रहा हूँ आंसर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर MUL, एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ MUL नाम का वेरिएबल, ठीक है। सो अब ये MUL वेरिएबल के नाम के अंदर आंसर स्टोर करूंगा मैं, ठीक है। अब ये ABC तीन वेरिएबल में यूजर से ले रहा हूँ, तो इसको printf scanf से मैं रीड करके ले लूंगा। सो printf यूजर को बोलूंगा मैं, एंटर द थ्री नंबर्स, ठीक है। सो आफ्टर दैट scanf से क्या करेंगे हम लोग, रीड करेंगे। सो रीड करने के लिए इंटीजर है इसीलिए %d, ओके। कौन सा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हूँ, ABC, तो एम्परसैंड A, एम्परसैंड B, एम्परसैंड C, ओके। अब ये तीन वेरिएबल आ गए, ABC के अंदर डेटा आ गया। आफ्टर दैट उसको क्या करना, मुझे मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री नंबर्स, वेरी सिंपल, A इंटू बी इंटू सी, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। आंसर किसमें स्टोर करना है, उसके लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया MUL, तो उसको मैं MUL इस वेरिएबल में इसका आंसर स्टोर करूंगा। देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑलवेज जब भी मैंने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी आएगा, ऑलवेज पहले कंट्रोल राइट हैंड साइड में जाता है, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा इसको इवेल्युएट करेंगे और it will be converted into single value, and that single value would be assigned to the variable present at the left hand side, ठीक है। सो आफ्टर दैट MUL में भी आंसर आ गया, आंसर आने के बाद इसको डिस्प्ले करना है। सो प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन of three numbers is %d, and what is the answer, MUL में आंसर, ठीक है। MUL में आंसर, इसका आंसर वेरी सिंपल, बस इतना ही प्रोग्राम है। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, व्हाट वुड बी द आउटपुट। यहाँ पर क्या है, एंटर द थ्री नंबर्स, एंटर द थ्री numbers, let's say the number is 2, 3 and 4, देन आफ्टर दैट जैसे ही यूजर डालेगा और एंटर हिट करेगा, व्हाट वुड बी द आंसर, यहाँ पर वेरी क्विकली एंटर द थ्री नंबर्स से ये जो तीन नंबर्स है 2, 3, 4, 2 A में जाएगा, 3 B में जाएगा, 4 C में जाएगा, एंड वेरी क्विकली राइट हैंड साइड में कंट्रोल आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा MUL में, एंड दिस स्टेटमेंट वुड बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट। मल्टीप्लीकेशन of three numbers is, what would be the answer, 24,
ओके। सो ये जो प्रोग्राम मैंने बताया ये विदाउट फंक्शन का प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द आंसर। अब यही प्रोग्राम को अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ऐड कर दूंगा यूजिंग फंक्शन, राइट प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द आंसर यूजिंग फंक्शन, फंक्शन को यूज करके आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो करना क्या है, ये जो मेन टास्क है ना मल्टीप्लीकेशन का, ये आप रादर देन डूइंग इट इन मेन फंक्शन, आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना, उस फंक्शन के अंदर ये टास्क को देना है और वहां से आंसर को लेकर के आना है और यहाँ पर आकर के मेन फंक्शन में उसको डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइप 1 से हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई, write a program to multiply 3 numbers, write a program to multiply 3 numbers and display the answer. यूजिंग फंक्शन, तो क्वेश्चन अभी ऐड हो गया है यूजिंग फंक्शन, तो फंक्शन का यूज करना है, तो उसका भी सोल्यूशन क्या रहेगा, देखो वेरी सिंपल, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते थे, वॉइड मेन लिखते थे। अब यहाँ पर मैं वॉइड मेन अभी नहीं लिखूंगा, थोड़ा नीचे लिखूंगा यहाँ पर, आई विल राइट डाउन ओवर हियर void main, okay, and then this is the body of the main function, then इसके ऊपर यहाँ पर अभी मैं पर्टिकुलर जो फंक्शन जो मैं यूज कर रहा हूँ फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर हैश इंक्लूड stdio.h के बाद में मेन फंक्शन से पहले हम लोग फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर सीक्वेंस वैसा ही हम लोग रखेंगे, हमेशा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो वही हम लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा जो प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने कैसे किया था, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लगेंगे, लेट से ए बी और सी, 3 वेरिएबल्स लगेंगे और आंसर स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल, लेट से MUL नाम का एक वेरिएबल मिलेगा जिसमें आंसर मैं स्टोर करूंगा और सबको मैं इंटीजर डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट ABC एंड MUL 4 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दैट अब ये 3 वेरिएबल्स यूजर से मिलूंगा, सो printf एंड scanf, वेरी सिंपल, printf enter the 3 numbers, enter the 3 numbers, देन scanf, वही जो प्रीवियस जो प्रोग्राम है हम लोगों ने की है वही सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, एंड A कॉमा एंड B कॉमा एंड C, तीनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट अब करना क्या है, A इंटू बी इंटू सी और उसका आंसर स्टोर करना है MUL में, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था। बट ये जो मल्टीप्लीकेशन का जो टास्क है ये मैं एक फंक्शन में करूंगा, फंक्शन को ये टास्क में दे रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। लेट से एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, उस फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट से MULTI नाम का एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने कार का एग्जांपल लिए थे, वो कार बनाने के लिए मैं उसको स्पेयर पार्ट्स दूंगा उसको मैकेनिक को, तो स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करेगा और फिर वो रिटर्न देगा मुझे कार बना के। वैसे ही सेम ये मल्टी नाम का एक फंक्शन है, इसका काम क्या है, जो भी मैं नंबर्स इसको दूंगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर रिटर्न करने वाले मल्टी, ठीक है। तो अभी मेरे को उसको क्या पास करना है, 3 नंबर पास करना है। कौन कौन से 3 नंबर, ABC जो मैं यूजर से लिया हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टी A कॉमा B कॉमा C, 3 वेरिएबल में इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मल्टी नाम का फंक्शन इसको कॉल कर रहा हूँ मैं, तो अभी ये मल्टी नाम का फंक्शन मैं यहाँ बनाऊंगा, ऊपर आऊंगा मैं हैश इंक्लूड के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा MULTI, दिस इज द फंक्शन नेम। अब ब्रैकेट में क्या पास करूंगा मैं, ब्रैकेट में क्या पास करूंगा, रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स, तो यहाँ पर ABC 3 वेरिएबल्स यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट P कॉमा इंट Q कॉमा इंट R। अभी आप लोग सोचोगे सर आप तो ABC पास करो, यहाँ पर आकर के PQR क्यों लिख रहे हो आप, यहाँ पर अगर मैं ABC भी लिखूंगा तो भी चलेगा, PQR लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई भी नाम, सिर्फ मेन फंक्शन मेन, यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है, 3 इंटीजर डेटा मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 3 इंटीजर डेटा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखो स्पेसिफाई करना आपको ये डेटा टाइप क्या है, P का डेटा टाइप क्या है, इंट, Q का इंट, R का इंट। यहाँ पर P एक्चुअली है क्या, ये जो A का जो कंटेंट है वो यहाँ पर आएगा P में कॉपी हो जाएगा, B का कंटेंट यहाँ पर आएगा Q में कॉपी हो जाएगा, C का जो कंटेंट यहाँ पर आएगा R में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये अलग मेमोरी
ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं। आप नाम सेम भी ले सकते हो, एबीसी, यहाँ पर भी एबीसी भी मैं लूंगा तो भी चलेगा, क्यों? बिकॉज दिस इज एक्चुअल पैरामीटर, दिस इज फॉर्मल पैरामीटर्स। ऑलवेज रिमेंबर, जो फंक्शन कॉल में हम लोग यूज करते हैं दिस इज एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ पर जो फंक्शन में हम लोग करेंगे ये दिस इज फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, सो रिमेंबर एबीसी तीन डेटा यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, इंट पी, इंट क्यू एंड इंट आर। अब ये तीन रॉ मटेरियल इसको मिल गई, इसको करना क्या, मल्टी का काम क्या है, मल्टी फंक्शन का, तीनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, P इंटू क्यू इंटू आर। अब ये P इंटू क्यू इंटू आर करने के बाद में इसका जो आंसर है वो कोई ना कोई वेरिएबल मुझे स्टोर करना है। तो लेट्स से मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ टी नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके अंदर ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, P इंटू क्यू इंटू आर, तो उसको भी मुझे डिक्लेयर करना है, यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दो इंट टी। ठीक है, अभी जो टी के अंदर आंसर जो आ गया इसको मुझे रिटर्न करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है RETUR एंड रिटर्न व्हाट, टी। अभी जो मैं रिटर्न करूंगा टी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। यहाँ पर मल्टी का डेटा टाइप आपको लिखना पड़ेगा इंट, INT। ठीक है, सो इंट मल्टी इन द ब्रैकेट इंट पी कॉमा इंट क्यू कॉमा इंट आर। इन दिस वे दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो अब ये रन कैसे होता है देखो, अब यहाँ पर ये जो टी रिटर्न कर रहा है वो आंसर, ये मल्टी नाम के फंक्शन ने ये आंसर को रिटर्न किया, टी के अंदर आंसर आ गया, लेट्स से 2 3 4, आंसर इज 24, तो इसने टी के अंदर 24 आ जाएगा, दैट 24 इट विल रिटर्न। तो जो रिटर्न करेगा यहाँ पर, अभी ये जो पूरा पर्टिकुलर थिंग है मल्टी ए कॉमा बी कॉमा सी, ये अभी इसकी जगह पर 24 आ जाएगा। अब ये 24 मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना, कहाँ स्टोर करूंगा, MUL नाम के वेरिएबल में, बिकॉज मुझे आंसर MUL में स्टोर करना है। यहाँ पर लिखूंगा मैं इज इक्वल टू, यहाँ पर MUL में आंसर आ गया। करना क्या, अभी सीधा डिस्प्ले करूंगा मैं, प्रिंट एफ क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री गिवन नंबर्स इज परसेंटेज डी, और कहाँ पर है वो, MUL नाम के वेरिएबल में। ठीक है, वेरी सिंपल। इसका आउटपुट कैसे आएगा बताओ, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ABC MUL ये चार वेरिएबल मेमोरी में बन जाएंगे, ABC और MUL, ABC MUL नाम के चार वेरिएबल्स बन गए। अब एंटर द थ्री नंबर्स, तो आउटपुट में आपको ऐसे दिखा देगा, एंटर द थ्री नंबर्स। इसको देख करके यूजर 2 3 4 लेट्स से उसने डाला, तो 2 गया ए में, बी में 3 और सी में 4। अब ये 2 3 4 के बाद में फॉरन नेक्स्ट पर्टिकुलर स्कैन एफ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इक्वल टू साइन है, तो कंट्रोल पहले यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल, मल्टी नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ पर आएगा, MULTI, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। और ये जो ABC है यानी 2 3 4 है, ये 2 3 4 भी अभी ये यहाँ पर आकर के कॉपी हो जाएगी, P में आएगा 2, Q में आएगा 3, R में आएगा 4। तो PQR नाम की अलग डिफरेंट मेमोरी में एक PQR, ये तीन अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पर भी 2 3 4 कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से कंट्रोल अंदर आएंगे, इन टी नाम का एक और वेरिएबल बनेगा यहाँ पर, तो टी नाम का एक और वेरिएबल बना, और फिर यहाँ पर P इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, आंसर आएगा 24, 24 टी में चला जाएगा। अब ये रिटर्न कर रहा है 24 को, 24 मल्टी क्या डेटा टाइप है 24 का, इंट, तो ये अभी 24 कहाँ आएगा, सीधा यहाँ पर ये मल्टी ABC इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर एक सेमीकोलन आएगा 24। अब ये जो 24 आया, ये 24 कहाँ अभी स्टोर होगा, MUL में। वाई, बिकॉज असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ऑलवेज कंट्रोल राइट हैंड साइड में आएगा, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल वैल्यू में, दैट सिंगल वैल्यू विल असाइन टू द वेरिएबल प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड। MUL में 24 आया, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये डिस्प्ले हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री गिवन numbers is what,
तो ये तो एक टास्क था, दिस इज द प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स। ऐसा कोई भी टास्क हो सकता है, टू ऐड 3 नंबर्स और टू डिवीजन हो गया, या फाइंड आउट द एरिया, या फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, या टू फाइंड आउट फिबोनाची सीरीज, यानी कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। आपको अगर सिर्फ फंक्शन ऐड करके यूज करने बोल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, जो टास्क हम लोग मेन फंक्शन, एक ही फंक्शन में हम लोग कर रहे थे ना, उसको क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, उस टास्क को वहां ले जाना है, वहां से सॉल्व करना है और वहां से आंसर मेन में ला करके डिस्प्ले करना है। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो दिस इज द टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट मेन फंक्शन में लेते हैं, कैलकुलेशन फंक्शन में करते हैं, एंड देन आउटपुट अगेन यहां पर आकर के डिस्प्ले करते हैं। देखो आउटपुट यहां पर, तो आपको याद होगा टाइप 1 में क्या है, इनपुट मेन फंक्शन में, कैलकुलेशन माय फंक्शन में, देन आउटपुट अगेन मेन फंक्शन में। ठीक है, टाइप 2 में क्या करते हैं, इनपुट यहां लेते हैं, फिर फंक्शन कॉल करेंगे, कैलकुलेशन भी इधर करेंगे और आउटपुट भी यहीं डिस्प्ले करेंगे। और टाइप 3 में क्या करते हैं, मेन से सीधा फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ आते हैं, इनपुट भी यहाँ पर लेते हैं, कैलकुलेशन भी यहाँ पर, आउटपुट भी यहाँ पर। ठीक है, बट मोस्टली हम लोग टाइप 1 ही प्रेफर करेंगे, इनपुट कैलकुलेशन आउटपुट, या टाइप 2 कभी कभी करेंगे हम लोग, इनपुट मेन फंक्शन में और जो माय फंक्शन है, जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें कैलकुलेशन और आउटपुट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम।